Hello students, good morning. Today we are going to start the seventh chapter of the history, human settlement, transport and communication. Okay. Basically the settlement meaning is the place where people build their homes. This is known as the settlements. And the place where building or a settlements developed is called a site. So it means where the people are living, this is known as the habitat sites. So settlements are places where people are building their homes. Early human beings lived on trees and in caves. You know it very well. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent homes. It means whenever they are starting to uh, live, started the settled cultivation. It it make them compulsive to live in the house or permanent home. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. Okay. With the development of trade, commerce, and manufacturing, human settlements became larger. Settlements flourished and civilizations developed near river valleys. Do you recall the names of civilization that grew along the banks of river Indus, Tigris, Nile, and Huangho? It means all type of the settlements grow up near the river banks, whether it is known by the Indus River civilization, Tigris River civilization, Nile River civilization, and Huangho River civilization. Acha. Settlements can be categorized into different categories, like the permanent settlement and temporary settlement. So permanent settlements means where people is living for permanently in their pakka houses, and the temporary means where people are living for the short period of times in their kacha houses or their huts, in their tents. Okay. तो अब यहाँ पर बात की गई है कि पक्का हाउस, टेम्परेरी सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट है। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या कहा गया कि जहाँ पर क्या रहते हैं हम लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, वहाँ हमें रहना ही रहना है। तो वहाँ हमारी क्या होगी, पक्का हाउस है जो वहाँ पर बना लेते हैं, हम अपनी कल्टिवेशन वहाँ पर कर लेते हैं और कुछ ऐसी खेती कर लेते हैं कि जिसकी हमें ज़रूरत वहाँ पर बार बार वहाँ पर उसकी कुछ, कभी उसमें इरीगेशन करना है, कभी उसमें इंसेक्टिसाइड छिड़कने हैं। इस टाइप से वहाँ पर क्या हो गया, सारी एक्टिविटीज़ वहीं पर चलते रहेंगी। अच्छा, जो हमारे टेम्परेरी सेटलमेंट्स हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट्स से या तो क्या होंगे, वो वेरी हॉट एरिया होगा या वेरी कोल्ड एरिया होगा, तो वहाँ पर भी टेम्परेरी सेटलमेंट्स होता है। अगर बहुत ज़्यादा हॉट एरिया है तो वहाँ पर क्या होते हैं, पीपल आर नॉट लिविंग इन द समर सीजन से। बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है तो पीपल आर नॉट लिविंग देयर इन द विंटर सीजन से। अच्छा, कभी कभी हमारे जो रिवर वैलीज के आसपास का एरिया है, वहाँ रेनी सीजन में लोग नहीं रहते हैं, वहाँ से क्या कर देते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। दिस इज नोन एज द टेम्परेरी सेटलमेंट। अच्छा, तो अब जहाँ टेम्परेरी सेटलमेंट होंगे वहाँ हमारे क्या होंगे, कच्चा हाउसेज होंगे मोस्टली। जैसे हमने कहा कि हट हो गया उनकी, और टेंट हो गए, इस टाइप से। हम्म, अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है, ट्रांसहुमेंस। It is a seasonal movement of the people. Transhumant means seasonal movement of the people. Transhumant। अच्छा, जो अभी सीजनल मूवमेंट हमने अभी वर्ड आपके साथ यूज किया था। So settlements are the two any other types, compact settlements and scattered settlements. So in the compact settlements means we will find the compact settlement in the urban areas, and the temporary scattered settlement in the village areas. See in the figure number 7.2, we will see the compact settlement here.
It means the houses are the nearer to each other, very close up to each other, and in scattered settlements houses are in very distance. अच्छा, तो जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स है ये हमें मेनली अर्बन एरियाज में मिलता है, शहरों में मिलता है, जहाँ पर जो हमारे घर होते हैं बहुत नज़दीक नज़दीक सटे रहते हैं। और जो स्केटर्ड सेटलमेंट है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें एक बहुत बड़े एरिया में कम घर मिलते हैं, या कॉम्पैक्ट में छोटी एरिया में बड़े घर मिलते हैं। और जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है वो प्रॉपर प्लान के तहत डेवलप किया जाता है। उसमें जैसे कहाँ से हमें रोड्स जानी है, कहाँ से गली जाएगी, कहाँ से वाटर लाइन जाएगी, कहाँ से लैंड हमारी वो इलेक्ट्रिक सिटी की लाइन जाएगी, कहाँ से हमारी केबल जाएगी, कहाँ से हमारे ये अदर जो चीज़ें हैं टेलीफोन लाइन जाएगी, ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स में उधर प्लान होती हैं। और जो स्केटर्ड सेटलमेंट है वहाँ पर हमें क्या होता है, कुछ विदाउट प्लानिंग मकान बना दिए जाते हैं, विदाउट एनी मैप यू कैन से। जो मेनली स्केटर्ड सेटलमेंट है हिली एरियाज में, रूरल एरियाज में और देखने को मिलता है। अच्छा, अब एक और देखें हम, हाउसेज ऑन स्टिल्ट, एक नया टाइप है हाउसेज ऑन द स्टिल्ट। हाउसेज ऑन स्टिल्ट का मतलब है जो मेनली जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जहाँ पर फ्लड आने का ज़्यादा खतरा रहता है, वहाँ पर जो हाउसेज हैं वो स्टिल्ट पर बनाए जाते हैं, कुछ ये बांस के डंडे पर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमें लिखा भी है, places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on the raised platform और stilts। जैसे कि आपका नीचे वाला जो बेसमेंट है उसको खाली छोड़ देते हैं, या आप क्या कह सकते हैं उसे ग्राउंड फ्लोर कह सकते हैं, खाली छोड़ा है। और जो अपर फ्लोर है उनको रहने के लिए बनाया गया है, तो नीचे से पानी आएगा तो जाते रहेगा। अच्छा, उसके बाद एक कहा गया है कि हाउसेज ऑन द इग्लूज, इग्लू एक नाम आया है। अब इग्लू जो आइस के जो घर बने रहते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर के ठंडे से बचने के लिए अंदर ऐसे एक क्या है, एक टेंट टाइप का, बंदी टाइप का घर बना देते हैं। these are known as the igloos. The towns are small and the cities are larger urban settlements. In urban areas the people are engaged in manufacturing, trading and services. हाँ, तो अभी ये हमारा इग्लूज का, इग्लू क्या हो गया, सो वी हैव द फोर टाइप्स ऑफ द सेटलमेंट्स है। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, स्कैटर्ड सेटलमेंट है, हाउसेज ऑन स्टिल्ट एंड इग्लूज। इग्लूज क्या है, आइस के बने हुए घर हैं जो मेनली लैंड माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ बहुत सारी हमारे पास क्या होती हैं, आइस वाली एरिया मिलेगी हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसपोर्ट टॉपिक। तो ट्रांसपोर्ट टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया है, horse cart as a mode of transportation. It means in the past we had no any road transport developed, not the air transport developed. Only some of the times oldest transport, or you can say nowadays it's a sea transport. And sometimes we are using the uh, horse cart, bullock carts still we are using nowadays. Yes. तो ट्रांसपोर्ट में क्या है, जब हमें when the people want to move one place to another place by any vehicle से, this is known as the transportation. तो गुड्स और सर्विसेज को हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। अब नाउ सी इन द फिगर नंबर 75। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, कंट्रीज में जो हमारे यहाँ कंट्रीज में है, डंकीज, मूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर द कॉमन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर जो कहा गया कि इन एंडीज माउंटेन्स ऑफ द साउथ अमेरिका, अच्छा, याम्स आर यूज्ड एज आर द याक्स इन तिब्बत। तो जो एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका का है वहाँ पर याक्स यूज किए जाते हैं। अच्छा, दैट अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। क्यों लेते थे इतना टाइम, बिकॉज ऑन द टाइम देयर आर द नो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन वर डेवलप्ड। चलो, अब आजकल तो हम क्या कर रहे हैं, आजकल तो हम क्या करते थे वहाँ पर